اللہ کے پاک نام سے سورہ نور کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 9 رکوع اور 64 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 24ویں سورت ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 102 ہے، 102 نمبر پر ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں کو سورہ المائدہ اور عورتوں کو سورہ النور کی تعلیم دو۔ آئیے پہلے رکوع کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ، یہ ایک سورت ہے، انزلناہا، جسے نازل کیا ہم نے، وفرضناہا، اور فرض کیا ہم نے اسے، وانزلنا، اور نازل کی ہم نے، فیہا، اس میں، آیات، آیات، بینات، واضح، لعلکم، تاکہ تم، تذکرون، تم نصیحت حاصل کرو، الزانیۃ، زانیہ عورت، والزانی، اور زانی مرد، فجلدو، پس تم کوڑے مارو، کل واحد، ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، مئتا، 100، جلدت، کوڑے، ولا تأخذکم، اور نہ تمہیں پکڑے، بہما، ان دونوں کے بارے میں، رأفت، نرمی، فی دین اللہ، اللہ تعالی کے دین میں، ان اگر، کنتم ہو تم، تؤمنون، تم ایمان رکھتے، باللہ، اللہ تعالی پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ولیشہد، اور ضرور موجود رہے، عذابہما، ان دونوں کی سزا میں، طائفۃ، ایک گروہ، من المؤمنین، اہل ایمان کا۔ الزانی، زانی مرد، لا ینکح، نہیں نکاح کرے گا، الا مگر، زانیتن، زانیہ عورت سے، او یا، مشرکتن، مشرکہ عورت سے، والزانیۃ، اور زانیہ عورت، لا ینکحھا، نہیں نکاح کرے گا اس عورت سے، الا زان، مگر زانی مرد، او یا، مشرکن، مشرک مرد، وحرم، اور حرام کر دیا گیا، ذالک، یہ، علی المؤمنین، اہل ایمان پر، والذین، اور جو لوگ، یرمون، تہمت لگائیں، المحصنات، پاک دامن عورتوں پر، ثم پھر، لم یأتو، نہ وہ لائیں، باربعۃ، 4، شہداء، گواہ، فجلدوہم، پھر تم کوڑے مارو انہیں، 80، 80، جلدتن، کوڑے، ولا تقبلوا، اور نہ تم قبول کرو، لہم، ان کی، شہادتن، کوئی گواہی، ابدا، کبھی بھی، وَأُولَئِکَ، اور وہی لوگ، ہم، وہی، الفاسقون، نافرمان ہے، الا مگر، الذین، جن لوگوں نے، تابو، توبہ کی، من بعد، بعد، ذالک، اس کے، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بلا شبہ اللہ تعالی، غفور، بے حد بخشنے والا، رحیم،
نہایت رحم والا ہے۔ والذین، اور جو لوگ یرمونا تہمت لگائیں ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم یکن اور نہ ہو وہ، لہم ان کے پاس، شہداء گواہ، الا سوائے، انفسہم ان کے اپنے نفس، فشہادت تو گواہی، احدہم ان میں سے ایک شخص کی، اربع چار، شہادات شہادتیں، باللہ اللہ تعالی کی قسم کے ساتھ، انہو بلا شبہ وہ، لمن الصادقین یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے، والخامسۃ اور پانچویں دفعہ، ان یقیناً، لعنت اللہ لعنت ہو اللہ تعالی کی، علیہ اس پر، ان اگر کانا وہ ہے، من الکاذبین جھوٹوں میں سے، ویدرؤ اور ہٹا دے گی، عنہا اس عورت سے، العذاب سزا، ان یہ کہ تشہدہ وہ عورت گواہی دے، اربع چار، شہادات شہادتیں، باللہ اللہ تعالی کی قسم کے ساتھ، انہو یقیناً وہ مرد، لمن الکاذبین بلا شبہ جھوٹوں میں سے ہے، والخامسۃ اور پانچویں مرتبہ، ان یقیناً، غضب غضب ہو، اللہ تعالی کا، علیہ اس پر، ان اگر کانا ہو وہ، من الصادقین سچے لوگوں میں سے، ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ فضل اللہ تعالی کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، وان اللہ اور یقیناً اللہ تعالی، تواب بہت توبہ قبول کرنے والا، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ الفاظ کی وضاحت ہے، فجلدو پس تم کوڑے مارو، جیم لام دال سے ہے، رأفتن نرمی، را حمزہ فا سے ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ کا نام الرؤوف ہے۔ یرمونا وہ تہمت لگائیں، را میم یا سے ہے، ویدرؤ اور ہٹا دے گی، دال را حمزہ سے ہے۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اسے فرض کیا ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک حصہ ہے جیسے باقی حصے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اس نے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ انداز بڑا مختلف ہے، یہ سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، اس میں کلام سننے والے کے دل میں شک داخل نہیں ہوتا کہ کلام کرنے والے کی کیا مراد ہے۔ اس صورت میں بیان کردہ احکامات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ صورت کیا ہے؟ یہ روشنی ہے
जो दिलों के अंदर उतरती है, रोशनी रोशनी जो सब रोशन दिलों से फूटती है तो माहौल को रोशन कर देती है। रोशनी जब मुनव्वर दिलों से फूटती है तो कैसे माहौल को रोशन कर देती है। ये रब की रोशनी है जिससे तारीक दिल रोशन हो जाते हैं। हाँ, ये सूरत ऐसे अहकामात देती है जिससे रहने सहने के ढंग आ जाते हैं। माशरती जिंदगी कैसे गुजारी जाए, लॉकडाउन में सीखना ज्यादा आसान है ना, क्योंकि किसी भी माशरती निजाम के 4 बुनियादी इदारे होते हैं: स्टेट, इबादतगाह, तालीमी इदारा और खानदान। इस वक्त देखिए तालीमी इदारे बंद हैं, स्टेट के काम मुतासिर हैं, अगरचे हो रहे हैं। और अगर हम देखें तो इबादत गाहें बंद करने की एक कोशिश तो है। चौथा इदारा खानदान है, फैमिली, ये फैमिली टाइम है। और 5वां कोई इदारा नहीं है, लेकिन इदारों पर उसका असर बहुत है। यूं लगता है जैसे आज के लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा रोल उसी का है। और जब इल्हामी लाइफस्टाइल, अल्लाह ताला का दिया हुआ तरीका जिंदगी कॉर्नर कर दिया जाए तो नया लाइफस्टाइल तो मीडिया ने ही सिखाना है ना। तो अब देखिए, तो इस वक्त लॉकडाउन में किस कदर आसानी हो गई सूरह अन्नूर की वजह से। इंशाल्लाह घुटे हुए ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी के आसार पैदा हो जाएंगे। हाँ, जमीन के बाशिंदे अल्लाह ताला की वही से सूरह नूर से आसमानी लाइफस्टाइल सीख जाते हैं। इससे जमीन के बाशिंदे आसमानी जन्नत के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तो रब की रोशनी है, इसमें ठंडक है, मिठास है, सुकून है, इत्मीनान है। आओ ये रोशनी दिलों में बसा लें, आओ घिरानों को रोशन कर लें, आओ रोशनियों के मुसाफिर बन जाएं, आओ ये रोशनी पूरे जहान में फैला दें। आओ जमीन को रब की रोशनी से भर दें, आओ जिंदगी को अमर कर लें। रोशनी ही तो जिंदगी है, इसी रोशनी को साथ कब्र में उतरना है, इसी रोशनी के साथ मैदाने हशर में रास्ता तलाश करना है, इसी रोशनी ने जन्नत तक ले जाना है। बहुत दूर हमने जाना है और दिलों के चिराग जलाएंगे तो इंशाअल्लाह रोशनी जरूर होगी। और अब देखिए हर चीज क्लोज हो गई ना, ये वक्फा है अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने के लिए। क्लोज्ड, पूरी वर्ल्ड क्लोज्ड है भाई, जिसकी दुनिया उसकी मर्जी। आओ रब की मर्जी को जानते हैं। रब्बुल इज्जत ने फरमाया अंज़लनाहा, जिसे हमने नाजिल किया है। हमने, कौन है वो जिसका जहानों पर कंट्रोल है। आज सब देख रहे हैं ना, कंट्रोल खत्म हो रहा है। इटली के वजीर आजम ने अनाउंस किया हमारा कंट्रोल खत्म हो गया। पहले भी जिंदगी पर या मौत पर क्या कंट्रोल था,
غلط فہمی کے ماں سوا۔ انسان نے اپنا وقت لگایا، محنت کی، انسان نے تحقیقات کی، دنیا کو ایکسپلور کیا، اپنی ضروریات کے لیے بہت کچھ کھوجا، اس دنیا کی زندگی کو سہولت والا بنانے کے لیے کیا کچھ تلاش کیا۔ ساری تلاش اس زندگی کو جنت بنانے کے لیے ہے نا؟ پھر یہ کیسی جنت ہے جہاں موت کا راج ہے، جہاں سب ایک ٹائنی کریچر سے خوف زدہ لاک ڈاؤن میں ہے۔ دنیا جنت نہیں بن سکتی، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے زمین والے اپنی جنت کو تلاش کر سکتے ہیں۔ جنت کیسے ملے گی؟ وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے اسے فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو اپنے اوپر لاگو کر کے سیدنا مجاہد نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حلال کا حکم دیا اور حرام سے روکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو فرض کیا ہے جو اس صورت میں شامل ہیں۔ وہ احکامات کیسے ہیں؟ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اسے فرض کیا ہے اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں۔ جس نے فرض کیا ہے اس نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، کھلی آیات، واضح احکامات، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی، کچھ بھی مبہم نہیں ہے، کھلا ہے، اوپن سیکریٹ۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات کی حکمتیں بھی نازل کی ہے۔ آیات بینات، واضح آیات، کھلی آیات ہیں۔ اس سے مراد حدود و فرائض اور اوامر و نواہی ہیں۔ کیوں کھول کر بیان کیا؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورہ النور کو نازل کرنے کی حکمت ہے کہ آپ نصیحت حاصل کر لو، مان جاؤ، اپنا لو، اسی میں بھلائی ہے۔ اس سورت کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد رکھیں، بھلائیں نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں، غافل نہ ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کے مطابق عمل کریں، منہ نہ موڑیں۔ پہلی بات تو پہلے کرنے والی ہے نا۔ حکم ہے جہانوں کے بادشاہ کا۔ وہ کیسا بادشاہ ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ وہ بادشاہ ہے نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ زندگی اور موت اس لیے دی ہے تاکہ جانچ ہو، تاکہ انسانوں کو آزمایا جائے، پرکھا جائے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے احکامات دیے تو یہ فرمایا، الذی خلق سبع سماوات طباقا، اس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں
किसी किस्म की बेतरतीबी नहीं देखोगे। फर्जिल बसर, फिर निगाह लौटा कर देखो। हल तरा मिन फतूर, कहीं आप कोई रखना देखते हो। सुमर्जिल बसर कररतैनी, फिर निगाह लौटा कर देखो। यनकलिब इलैकल बसरु खासियम वहुवा हसीर, तुम्हारी निगाह थक कर नामुराद लौट आएगी। आसमानों का निजाम बेखता है, एरर फ्री। चैलेंज है पूरे जहान वालों के लिए, कोई एरर निकाल कर दिखाओ। जिसने आसमान का कानून बनाया उसी ने जमीन पर रहने वालों को कानून दिया है, और उसने ये बताया कि देखो ये सूरत है, हमने इसे फर्ज किया है। फर्ज की बात किस लिए कही गई कि जो कुछ सूरत में कहा जा रहा है वो सिफारिशात नहीं है, फर्ज है। कबूल कर लें, इरादा कर लें, कहीं भी अपनी बात को ऊपर नहीं करना। जहां रब की बात आ जाए वहां सरे तस्लीम खम है। इरादा कर लें। आप पहले इरादा करेंगे तो हम आगे जाएंगे। दुआ कर लें, आप दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तौफीक देगा, इंशाअल्लाह। और फर्ज की बात इसलिए भी कही गई है कि फर्ज को ख्वाहिशात से टाला नहीं जा सकता, लिहाजा कोई ख्वाहिश इसके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। कोई ख्वाहिश। इंसान पाबंद है, पाबंद बनकर जीना सीखे। ये पूरी कायनात पाबंद है। यहाँ किसी को अल्लाह ताला की पाबंदी से बाहर जाके किसी काम के करने की आजादी अगर है भी तो हिसाब होगा। रब्बुल इज्जत ने फर्ज की बात इसलिए भी कही है कि इसको समझना और इसमें बताए गए आदाब के मुताबिक अमल करना इसी तरह फर्ज है जिस तरह हुदूद पर अमल करना फर्ज है। और फर्ज की बात इसलिए भी कही गई कि लोग आदाब व अखलाक को भूल जाते हैं, इसलिए ताकीद की गई लाज़मन कबूल करना होगा। और आइए देखते हैं, माशरती अहकामात की इब्तिदा होती है तो सबसे पहले रिश्ते नासूर की बात है। वो जो किसी सोसाइटी के सुकून को तलपट करके रख देने वाली बीमारी है, वो जो घरानों को तबाह कर देती है, वो जो इंसानों को बर्बादी के घाट उतार देती है, वो बीमारी। सिर्फ बीमारी का तज़किरा नहीं किया, सजा से आगाज किया है। ये आयत नंबर 2 है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दतिन वला तअखुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फी दीनिल्लाहि इन कुन्तुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। जानी औरत और जानी मर्द दोनों में से हर एक को तुम 100 कोड़े मारो, और उन दोनों के बारे में अल्लाह ताला के दीन में नरमी तुम्हें दामनगीर न हो। अगर तुम अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो और उन दोनों की सजा के वक्त अहले ईमान का एक गिरोह जरूर मौजूद रहे। ज़िना की हद की वजाहत है। इस आयत में
जिना की हद यानी ताजीर का बयान है। जिना क्या है? मर्द और औरत का जायज रिश्ता निकाह के बगैर मुबाशरत करना। जायज रिश्ते के बगैर मुबाशरत करना जिना है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जानी औरत और जानी मर्द। ये हुक्म गैर शादीशुदा जानी और जानिया के लिए है। जहां तक शादीशुदा औरत और शादीशुदा मर्द का ताल्लुक है, उसकी सजा हदीस में मौजूद है। कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दतिन, दोनों में से हर एक को तुम 100 कोड़े मारो। यानी जब गैर शादीशुदा जानी हो, जबकि वो आजाद, बालिग और सही होशो हवास वाला भी हो, तो उनको 100 कोड़े मारे जाएं। अगर जिनाकार शादीशुदा है तो सुन्नत सहिया दलालत करती है कि उसकी हद रजम है, यानी संसार करना। फिर फरमाया वला तअखुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुअमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और उन दोनों के बारे में अल्लाह ताला के दीन में नरमी तुम्हें दामनगीर न हो, अगर तुम अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो। हुदूद जारी करने में तरस न खाया जाए। अल्लाह ताला ने हमें इस बात से मना किया है कि जिनाकार मर्द और औरत पर हद जारी करते वक्त हमें रहमत और शफकत का ऐसा जज्बा पैदा हो जो हमें उन पर हद कायम करने से रोक दे, हाँ ये तबई तौर पर रहम हो या कराबत या दोस्ती वगैरह की वजह से हो। ईमान इस रहमत की नफी करता है। तुम्हारे दिल में तरस ना आए, स्टॉप। जानी है, जानिया है, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं चाहिए। क्यों? अल्लाह ताला के हुक्म को कायम करने से रोकेगा। अल्लाह ताला की हकीकी रहमत तो जानी पर हद नाफिज करने में। यहाँ ये बात कही गई कि हदें जारी करने में सुस्त न बनो, अल्लाह ताला की हदें जारी करने में मजबूत रहो, बदकारों पर तरस न खाओ। दिल के रहम की ममानियत नहीं, उनकी हालत काबिल रहम है ही, लेकिन हाकिम को हद जारी करने में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। रहम खाकर उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मामला अंदर खाते दबा दिया जाए तो उस पर खाक डाल दो, आगे न बढ़ाओ। बदकारों को तौबा की हिदायत कर दो। हाँ, अगर अदालत तक पहुंच गया है और सबूत भी है तो फिर हद के बगैर चारा नहीं। एक हदीस में है, तुम आपस में हदें माफ कर दो, लेकिन हद का जो वाकया मुझ तक पहुंच जाएगा उसमें हद वाजिब होगी। एक हदीस में कि 40 दिन की बारिश से ज्यादा मुफीद दुनिया में एक हद का कायम हो जाना। यहाँ तवज्जो कीजिएगा, रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, अगर तुम अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो तो अल्लाह ताला की हद जारी करने में तुम्हारे दिल में तरस और रहम नहीं आना चाहिए। तरस कैसे आता है? जब हद सब लोगों के सामने कायम की जाए और अल्लाह ताला चाहते हैं वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, और उन दोनों की सजा के वक्त अहले ईमान का एक ग्रोह जरूर मौजूद रहे। लोगों की मौजूदगी में हद कायम की जाए। हद जारी करते वक्त
اہل ایمان کی ایک جماعت موجود رہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ حد نافذ ہو, سب لوگوں کو پتہ چل جائے اور مجرموں کے دل میں خوف بیٹھ جائے, ان کی رسوائی ہو. جب کوڑے منظر عام پر لگائے جائیں گے تو آئندہ لوگ زنا جیسے جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے خوف کھائیں گے. حد کے نفاذ کے مشاہدے سے شریعت کا علم پختہ اور راسخ ہوتا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سزا دینے کا اصل مقصد پورا ہو, لوگ عبرت حاصل کریں. یہ مقصد تبھی پورا ہو سکتا ہے جب لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہو, تاکہ موجودہ مجرم کو دیکھ کر مستقبل کے مجرم ڈر جائیں اور حرام سے باز آئیں. اسی لیے مسلمانوں کی کثیر تعداد کو سزا کے وقت موجود رہنے کا حکم دیا ہے. دور حاضر میں برسر عام سزا کو ہیومن رائٹس کے خلاف سمجھا جاتا ہے. عجیب بات ہے, جس نے ہیومنز کو بنایا, جو رحیم ہے, جو 70 ماؤں سے بڑھ کر رحمت کرنے والا ہے, جس کی رحمت کے 100 حصے ہیں اور ایک حصے سے اس نے سب انسانوں پہ بھی رحم کیا, اور اگر انسان اور جانور اور ساری مخلوقات ایک دوسرے پر رحم کرتی ہیں تو اسی ایک حصے میں سے. تو ہیومن رائٹس تو اس نے دیے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ انسانوں نے انسانوں کے لیے حقوق مقرر کرنے شروع کیے اور برسر عام سزا کو انسانی حقوق کے خلاف سمجھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جہالت کے سوا کچھ نہیں. انسان جن معاملات کا ادراک نہیں کر سکتا اس کے بارے میں بڑھ کر فیصلے کر کے زیادتیوں کو ثبوت دیتا. اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت ہے. اس کی ایک وجہ حماقت کی وجہ سے خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ انسانوں کا ہمدرد سمجھنا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. کبھی آپ دیکھیں کہ مختلف لینگویجز میں جو محاورے ہیں شاید صورتحال کو زیادہ واضح کرنے والے. میں محاورے سے پہلے ضرور پاکستان میں ہونے والے ایک سانے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سوات میں اور پھر اسی طرح سے مختلف مقامات پر جب یہ نظام شریعت کے خلاف جس وقت موومنٹ چلائی گئی, یہ ایک الگ سٹوری ہے کہ نظام شریعت کو کیسے نافذ ہونا چاہیے اور آیا وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا. لیکن میں تو جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ ایک سازش ہے. ایک مووی بنائی گئی جس میں ایک عورت پر کوڑے مارتے دکھایا گیا. کثیر رقم لگا کے جو مووی بنائی گئی اس کا مقصد لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف نفرت پیدا کرنا تھا. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بے رحم اور خود کو مہربان ثابت کرنا تھا. پھر کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ وہ حقیقت نہیں تھی, محض ایک مقصد تھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سزاؤں تعزیرات کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائیں. عجیب بات ہے, انسانوں کے حق میں اپنے آپ کو رحیم اور شفیق ثابت کرنا چاہتے ہیں اور عجیب طریقے سے کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ جن لوگوں نے یہ مووی بنائی تھی اب انہوں نے ایسی کیمپین شروع کر دی ہیں جس سے گھر گھر میں
और पूरे मुआशरे में फसाद बर्पा हो गया। रिश्ते तोड़ने के लिए, इंसानों को खालिक से दूर करने के लिए, इंसानों को अपने घरों में रहते हुए एक दूसरे से नफरत करने के लिए उन्हीं लोगों ने आमादा करना शुरू किया, वो भी ह्यूमन राइट्स के नाम पे। ह्यूमन राइट्स के नाम पर आज जो कुछ हो रहा है उसमें ठीक है, इंसानी हुकूक की बात है, लेकिन इंसान इंसानी हुकूक को कहां तक समझ सकते हैं? माजी का कितना इल्म रखते हैं, मुस्तकबिल को कितना जान सकते हैं, इंसान की शऊर की बारीकियों को कितना समझ सकते हैं? फैसला कुन हस्ती रब्बुल इज्जत की है। मैं जरूर ये कहना चाहती हूँ, पंजाबी में कहते हैं जात दी कोड़ कर ली ते शतीरा नु जफे, यानी अपनी औकात तो देखे इंसान कि वो रहमान के साथ मुकाबले पे आया है। तो आज देखे घरों में बंद हो गए ना, अब इंसानी हुकूक के लिए बाहर निकले, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई रैली, कुछ तो होना चाहिए, कोई सदा बुलंद करें मीडिया के थ्रू। खामोशी क्यों है? रहमत कहां गई? पीछे फसाना क्या है? आप भी देखते रहिएगा, अल्लाह ताला का मुकाबला करने वाले मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को शुकूक और शुबहात में जरूर मुब्तला कर सकते हैं। इस वजह से हमें डिटेल से देखने की जरूरत है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सजा क्यों दी है। अपनी रहमत की वजह से दी है। जिना को गुनाह करार दिया गया, कबीरा गुनाह, बुरा और मायूब करार दिया गया। हिकमत क्या है? इंसानी फितरत जिना की हुर्मत का तकाजा करती है, इसलिए आलमगीर इत्तेफाके राय है कि ये फेल अखलाकन बुरा समझा जाता है, दीनी एतबार से गुनाह समझा जाता है, माशरती एतबार से काबिल एतराज समझा जाता है। फिर नस्ल इंसानी की बका इस सूरत में मुमकिन नहीं है, क्योंकि मर्द और औरत अगर आर्जी ताल्लुक के बाद आजाद हो जाएं, तो आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। लिहाजा ऐसे इकदाम किए जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे वजूद में ना आए। यूं वसी पैमाने पर नस्ल इंसानी के कत्ल के प्रोग्राम बनाए जाते। क्या आप जानते हैं, आज के दौर में ह्यूमन राइट्स के नाम पर जो तहरीकें काम कर रही हैं, जो तंजीमें काम कर रही हैं, उनका असल एजेंडा क्या है? मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने जरूर रखना चाहती हूँ। फैक्ट टैंक न्यूज इन द नंबर्स में अप्रैल 27, 2018 की खबर है। About 1/3 of US children are living with unmarried parents. 1/3, एक तिहाई हिस्सा है जो अनमैरिड पेरेंट्स के साथ रहता है। ये जजमेंट नहीं है, रियलिटी है, ये एक हकीकत है। आप देखना चाहें जरूर देखिएगा, और फिर आप देखना चाहें कि सब दुनिया की क्या सूरत हाल है, दुनिया किस क्राइसिस से गुजर रही है। नाजायज जिनसी ताल्लुक इब्तिदा में तो सादा सी बात मालूम होती है, मगर जब एक मर्द और एक औरत के ताल्लुक से
एक तीसरा बच्चा पैदा होता है, तब पता चलता है ये कोई सादा काम नहीं था, ये अपने बाद संगीन नताइज रखता था। दुनिया में इतने बड़े पैमाने पे मने हमल अद्वियात क्यों इस्तेमाल करवाई गई? इसके बावजूद कितनी बड़ी तादाद में नाजायज बच्चे पैदा हो रहे हैं। बरतानिया में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, इनमें हर 5 में एक बच्चा वो होता है जो नाजायज जिनसी ताल्लुक के नतीजे में पैदा होता है। इसी तरह हर 3 हमल में से एक हमल गैर शादीशुदा जोड़ों के जरिए करार पा रहा है। लंदन से छपने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया इलेजिटिमेट किड्स के बारे में कि ये नाजायज बच्चे इस हाल में दुनिया में आते हैं कि न उन्हें अपने बाप का इल्म होता है न माँ का, सरकारी इदारों में पलते हैं, फिर जानवरों की तरह समाज में दाखिल हो जाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में तलाकों की कसरत ने भी यही सूरत हाल पैदा की है। निकाह का रिश्ता कमजोर हो गया। मामूली बात पर औरत और मर्द के दरमियान तलाक हो जाती है और इन तलाकों ने बड़े पैमाने पर वो मसला पैदा किया है जिसको ब्रोकन होम्स का, उजड़े घरों का मसला कहते हैं। औरत और मर्द के दरमियान जब तलाक हो जाती है, एन उसी वक्त वो अपने बच्चों को भी माँ और बाप के साये से महरूम कर देते हैं। माशरे में जानवरों की तरह ऐसे बच्चे परवान चढ़ते हैं, फिर इन्हीं के अंदर से मुजरिमाना किरदार उभरते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1984 ने कम से मुजरिमों के मौजू पर बहस करते हुए लिखा है कि 20वीं सदी ईस्वी के बौखला देने वाले समाजी रोगों में से एक रोग वो है जिसको कमसिनी का जुर्म कहा जाता है। अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेना। अगरचे कैफियत और रफ्तार के एतबार से एक मुल्क और दूसरे मुल्क में फर्क पाया जाता है। ये 1984 की रिपोर्ट है। आप सब जानते हैं कि इंसान का बच्चा सबसे ज्यादा कमजोर बच्चा होता है और जिंदा चीजों में सबसे ज्यादा अपने माँ बाप की मोहब्बत और सरपरस्ती का मोहताज होता है। लेकिन आज जदीद तहजीब का गैर फितरी रविश का ये नतीजा निकला है कि बच्चे उस नेमत से महरूम हो गए जिसको अल्लाह ताला ने माँ बाप की शक्ल में उनके लिए पैदा किया था। कहीं तो वो इसलिए महरूम है कि माँ सारा दिन काम करती है। उसे एम्पावरमेंट कहा गया, वुमेन एम्पावरमेंट। ये कैसी एम्पावरमेंट है जिसकी वजह से बच्चे माँ से महरूम है, उसकी मोहब्बत से महरूम है। कहीं वो इसलिए महरूम है कि माँ बाप के दरमियान अलहदगी हो गई। कहीं वो इसलिए महरूम है कि माँ बाप ने रिश्ते निकाह में बांधे बगैर जिनसी फेल किया था। उनके प्रोग्राम में बच्चा तो शामिल नहीं था। वो पैदा होने वाले बच्चे को अपना बच्चा समझना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि बच्चे की देखभाल करें। वालिदैन से महरूम बच्चे आज सवाल करते हैं, ह्यूमन राइट्स कहाँ है? इंसानी हुकूक कहाँ है? कचरे के ढेर पर कहाँ से आ जाते हैं ये बच्चे? कौन फेंक जाता है ये बच्चे? कौन मौत के घाट उतार देता है इन बच्चों को? इन बच्चों की जिंदगी कहाँ है? इंसानी हुकूक, इंसानी हुकूक का लंबरदार कहाँ है? अजीब सिलसिला है कि इंसानी हुकूक के
अलंबरदारों ने इसके लिए नया तरीका इजाद किया। दुनिया में इस बात को देखते हुए कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो रिश्ते निकाह के बगैर बच्चों को जन्म देती है, उन बच्चों की जिंदगी पर क्या बीतता है। इंसानी हुकूक की तंजीमें ऐसे बच्चों के लिए क्या कर रही हैं। ऐसे बच्चों के लिए ईदी ने ये प्रोग्राम शुरू किया था, मारो नहीं झूले में डाल दो, कत्ल ना करो झूले में डाल दो। हाँ ठीक है, झूले में डालने से जिंदगी तो बच जाती है, लेकिन ऐसी जिंदगी की कयामत के बारे में कोई तसव्वुर कर सकता है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो मेरे साथ एक लड़की होती थी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे फिर से पढ़ते थे। समझ नहीं आती थी इस बच्ची के साथ क्या मामला है। तवील मुद्दत तक हमें पता नहीं चला, बाद में हमें पता चला कि वो तो एसओएस में परवान चढ़ी है, क्योंकि उसके माँ बाप ने हादसाती तौर पर जिनसी फेल अंजाम दिया और वो वजूद में आ गई। उसके माँ बाप ने उसे तमाम रिश्तों से महरूम कर दिया। आप साइकोलॉजिकल स्टेट देखिए। अब देखिए ऐसे बच्चे को जिसको कोई भी ओन नहीं करता, डिसओन करने की इंतहा है। हर कोई उसे मुजरिम समझता है, हालांकि इस्लाम ये कहता है उसका कोई जुर्म नहीं, उसकी तरफ कोई उंगली नहीं उठेगी। आप अगर देखना चाहें अनमैरिड पेरेंट्स की दुनिया में कितनी बड़ी तादाद हो गई। अब इन बच्चों के लिए जानते हैं क्या इलाज सोचा गया? अजीब इलाज है। निकाह ही ना करें, निकाह को खत्म कर दें। पिछले दिनों में आपने देखा होगा औरत मार्च के मौके पर ऐसी बहुत सी स्टेटमेंट सामने आई थी। शादी नहीं, आजादी चाहिए। किससे आजादी चाहिए? आपका जिस्म इस बात की गवाही देता है कि आपको इस आजादी की जरूरत है। आप इमेजिन करें, कोई अगर ये कहे ये इस कौम की बेटियां हैं जिन्होंने ये नारे लगाए, नो बच्चादानी नो ओपिनियन, जिन्होंने कहा औरत शादी करने के लिए नहीं बनी है। क्या आप सोच सकते हैं मुस्लिम मुआशरे की बच्ची भी ये कहने के लिए तैयार हो गई, फिर औरत किस लिए बनी है? आपका वजूद पुकार पुकार कर कहता है आप शादी के लिए पैदा हुई हो, और फिर आप ये देखिए, मेरी शादी नहीं, आजादी की फिक्र करो। ये ह्यूमन राइट्स है भाई, इसको इंसानी हुकूक कहते हैं। नादानी, हिमाकत। रियली जिस बच्ची ने पोस्टर उठाया शायद वो भी नहीं समझती कि पीछे एजेंडा क्या है। फिर अब देखिए कि गुज़िश्ता साल जब 8 मार्च को औरत मार्च हुआ, उस वक्त एक साहब ने कहा जब तक निकाह का सिलसिला जारी है उस वक्त तक औरत आजाद नहीं हो सकती।
अस्तगफिरुल्लाह। औरत की आजादी किस लिए है? इसलिए है कि वो अपने जिस्म पर अपना हक समझे। बड़ी कभी दास्तान है इसके पीछे के फैक्ट्स की, कहां कहां की और कौन कौन सी बात सामने रखी जाए। उन बच्चों की जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उन माओं की जिन्हें अपने बच्चों का बोझ उठाना पड़ रहा है, वो बच्चे जिनका कोई बाप नहीं, जिनका कोई रिश्ता नहीं। दुनिया में मर्द और औरत के ताल्लुक के दो रास्ते हैं, जिना या निकाह। जिना फकत जिनसी तकाजे को पूरा करने का नाम है, जबकि निकाह में औरत की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, महर देना पड़ता है, औरत उसकी विरासत में शामिल हो जाती है। फिर लोग निकाह से क्यों घबराते हैं? जो लोग औरत को खिलौना समझते हैं, वो औरत से जिनसी लज्जत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां पूरी करना नहीं चाहते। फ्रांस के एक इंजीनियर की बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक फैक्ट्री की इंस्पेक्शन के लिए गया। वहां के इंजीनियर्स ने उससे कहा, आप 1 महीने के लिए आए हो, वापस जाओगे, पता नहीं आपकी बीवी आपके पास होगी भी या नहीं। तो कहता था, फिक्र की कोई बात नहीं, women are like buses, if you miss one take another one। औरतें बसों की मानिंद होती हैं, अगर तुम एक से रह जाओ फिर दूसरी पर सवार हो जाओ। अस्तगफिरुल्लाह। ये सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी की बात है। आप सोचिए, जिस माशरे में लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, इंसानी फितरत से जो दूर भागने लगे हैं, उन्होंने आखिर क्या रास्ता तलाश किया है? लोगों की दास्तानें अजीब है, लोगों का जहन अजीब है। एक साहब जिनकी एज ज्यादा थी, उनसे उनके साथी ने पूछा, यूरोप की बात है, कि ये बताएं कि आपकी इतनी उम्र हो चुकी, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? तो उसने जवाब दिया, इफ यू कैन फाइंड मिल्क इन द मार्केट देयर इज नो नीड टू हैव अ काउ इन योर हाउस। जब तुम्हें बाजार से दूध मिल जाता है, फिर तुम्हें घर में गाय पालने की जरूरत नहीं है। कितना घटिया मुआशरा है। सईदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंवारी लड़कियों से ज्यादा हया वाला देखा है। सोचिए, जिंदगी के साथी का फैसला तो लॉन्ग टाइम होना चाहिए ना। और पूरे यूरोप में, अमेरिका में थोड़ी देर के लिए साथी मिलते हैं, लेकिन जिंदगी के साथी नहीं मिलते। और उसकी रीजन क्या है? उनकी फितरत से हटी हुई फिलॉसफीज और पीछे काम करने वालों का एजेंडा। अक्टूबर 87 की एक रिपोर्ट है कि अमेरिका में हर साल तकरीबन 300 बच्चे अपने बाप या मां को कत्ल कर देते हैं। आज हमारे मुल्क में भी माँ बाप को कत्ल करने वाले पैदा हो चुके हैं।
तो बात है ज़िना की, जिसकी वजह से कोई बच्चे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता, और ज़िना की वजह से जब सोसाइटी तबाही के दहाने पर पहुंच गई तो एक नया कल्चर वजूद में आया कि मर्द मर्दों से ताल्लुकात रखें, औरतें औरतों से ताल्लुकात रखें, बच्चों का मामला ही खत्म हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स वालों ने अच्छा सोल्यूशन दिया है, जिसके बारे में रब्बुल इज्जत ने ज़िना से बड़ी सजा रखी है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद ने बयान किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से ज्यादा और कोई गैरतमंद नहीं है। यही वजह है कि उसने बेहयाई के कामों को हराम किया है, और अल्लाह ताला से बढ़कर कोई अपनी तारीफ पसंद करने वाला नहीं है। सईद आयशा ने कहा, रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ उम्मत मोहम्मद, अल्लाह ताला से बढ़कर गैरतमंद और कोई नहीं कि वो बंदे या बंदी को जिना करते हुए देखे। ऐ उम्मत मोहम्मद, अगर तुम्हें वो मालूम होता जो मुझे मालूम है तो तुम हंसते कम और रोते ज्यादा। ये बुखारी की 5221 नंबर रिवायत। सैयदना अबू हुरैरा ने बयान किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को गैरत आती है, और अल्लाह ताला को गैरत उस वक्त आती है जब बंदा मोमिन वो काम करे जिसे अल्लाह ताला ने हराम किया है। बुखारी की 5223 नंबर रिवायत। अल्लाह ताला ने जिना की सजा सख्त रखी है। उसका पहला मकसद यह है कि मुजरिम से उसके जुर्म का बदला लिया जाए। अगर जानी या जानिया कंवारे हैं तो उनको उसका इयादा करने से रोका जाए। मुजरिमों को सजा देकर दूसरों के लिए बाइसे इबरत बना दिया जाए। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अज़्ज़ानी ला यंकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन वज़्ज़ानियतु ला यंकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिकुन व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनी। जानी निकाह नहीं करेगा मगर जानिया या मुशरिका औरत के साथ ही, और जानिया के साथ निकाह नहीं करेगा मगर जानी या मुशरिक मर्द ही, और अहले ईमान पर ये हराम कर दिया गया है। इस आयत करीमा में जिना की रज़ालत और कबाहत का बयान है। बुरा फेल, फाइल और उसके साथ मेल जोल रखने वाले लोगों की इज्जत पर ऐसा धब्बा लगा देता है जो दीगर गुनाहों से नहीं लगता। आप इसको यूं देख सकते हैं, जैसे समझने के लिए, क्योंकि हर दौर की अपनी मिसालें होती हैं। कोरोना की वजह से जब कभी ये पता चलता है कि फलां इलाके के फलां घर में कोई केस है, पुलिस उस घर में पहुंचती है, वहां के अफराद गवाही देते रहे लेकिन उनका सैंपल टेस्ट करने के लिए ले जाया जाता है, और सैंपल की टेस्टिंग के दौरान उस घर को बंद कर दिया जाता है। घर को ज़ेरे निगरानी रखा जाता है। अंडर कंट्रोल रखने के बाद सारे इलाके के लोगों को पता चल जाता है ये नॉमिनेटेड घर है, इस घर में नहीं जाना। रात के 2 बजे भी अनाउंसमेंट्स होती हैं। मैंने ये मिसाल इसलिए दी है, कोरोना डेंजरस है लेकिन जिना कितना ज्यादा खतरनाक है। फिर रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जानी मर्द सिर्फ जिनाकार औरत से ही निकाह करे, उसका हाल ऐसी औरत के हाल से मुनासबत रखता है, या मुशरिक औरत उसके मुनासिबे हाल है जो आखिरत के दिन और जजा और सजा पर ईमान रखती है और अल्लाह ताला के हुक्म का इल्तिजाम नहीं करती। अज़्ज़ानी
لا ينكح الا زانیتا او مشرکتا، زانی نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ ہی. یعنی بدکار مرد سے زناکاری پر وہی عورت راضی ہوتی ہے جو خود بھی بدکار ہو یا مشرکہ ہو. یا سراج المنیر کی روایت ہے، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا مگر زانی یا مشرک مرد. یعنی بدکار عورت سے زنا کرنے پر وہی مرد راضی ہو سکتا ہے جو خود بھی بدکار اور مشرک ہو. مشرک زنا کو رضا کے ساتھ حرام نہیں سمجھتے تھے. آج کل بھی یہی پرابلم ہے، بدکاری کو رضامندی کے ساتھ کھلم کھلا رواج دیا جا رہا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی. ہاں، اتنی غیرت ہے کہ جبریہ آبرو ریزی کو برا سمجھا جاتا ہے. افسوس ہے مسلمانوں کے حالات پر. کل جہاں مشرک تھے آج مسلمان بھی اس صورتحال میں جا پہنچے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان پر یہ حرام کر دیا گیا ہے. یعنی مومن مردوں اور عورتوں پر زنا کو حرام کر دیا ہے. اس لیے لازم ہے کہ زانی کا نکاح پاک دامن عورت سے نہ ہو. ہاں، اگر وہ توبہ کر لے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے. اور زانی عورت کا نکاح پاک دامن مرد سے نہ ہو مگر اس کی توبہ